Hi guys, it's the second part of this video. So the question is, let's look at these questions. The question is, select the correct statement for the silk cotton plant, right? So the silk cotton plant belongs to the family Malvaceae or Bombyciae. Okay. So पहला स्टेटमेंट ये है कि पीनट के कंपाउंड लीफ आर फाउंड, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि सिल्क कॉटन प्लांट में कंपाउंड लीफ नॉट प्रेजेंट. Okay, the second one is a number of leaflets are present on rices. So this was incorrect because leaflets are attached to the top of the petiole, not along with radicals like in peanut leaves. Okay. So the answer is it is incorrect. It is also incorrect. And third one is the tip of the petiole bears all the leaflets in the form of bunches and clusters. Yeah, this one is correct because in this described as a palmately compound leaf characteristic of a silk cotton tree. Four options are leaves are with an entire lamina without any incisors. ये कुछ लिप्स में होता है ना क्योंकि कंपाउंड लिप्स में इंसिजर्स मतलब incisors that reach the middle midrib and petiole, right? So simple leaves में entire or inside lamina but do not form a leaflets, right? So this one is correct and this one is the answer. Now second one is question is statement based question, and statement is the leaf like structure are present at the base of the petiole called tract. No, it is incorrect. कि leaf like petiole, leaf like structure at the base of the petiole उसे stipules कहते हैं, ये नहीं कहते, तो ये तो गलती हो गया. And second option is axillary buds later develop into a branch of a leaf. That is incorrect because axillary bud develop a branch of a flower, not in a single leaf. A leaf develop from the leaf of the primordia on the shoot and typical medicine. So this one also wrong. So answer is 4. Option 4. Both are incorrect. Okay. Now question number 100. 100 में देखे कि reason of root which is responsible for the growth of the root length. So if we're talking about the reason of the leaf of the root which is responsible for the elongation, growth and length, whatever it is the region of elongation located just behind the root cap, right? And the region of meristem heavily. And it is the reason of elongation. Yeah, it is the correct. This option is correct. Has a epidermal hairs which are very fine and delicate. It is incorrect because root hair are found in the region of maturation and which is behind the region of elongation. So this one is incorrect. It is responsible for the absorption of water and minerals from the soil. I think it is incorrect because this is the primarily the function of the region of the maturation, like root hair zone. And option 4 was has a small thick walled cell which are able to divide repeatedly. This one is incorrect. This describes the region of meristematic activity. So this one is correct. Only one option is correct. So these all are the incorrect one. So here is a diagram of this. So इसका क्या है कि एरियोलर लेयर, ये अब क्या बताना है, इसमें बताना है कि इस डायग्राम पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. ठीक है, तो ऑप्शन इसके यहाँ पे दिस वन ऑप्शन यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन मैंने चेक किया था क्वेश्चन कैसे. नाउ अब ना देखो गाइस, अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये वाला क्वेश्चन ये है कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर. सो ये वाला क्वेश्चन का ये मतलब है कि आपको ऐसे में आपको ना बोलना है कि ये सही है कि फॉल्स है. तो आई थिंक ये फॉल्स है. ओके,
क्योंकि फ्लावर जैसे कि ग्रास अगर हम देखें टिपिकली जाइगोमॉर्फिक होता है, राइट? और वो डिविजिबल हो जाता है इरेगुलर में। तो ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट। सो सेकंड क्वेश्चन इज कि द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स जस्ट वन टच, तो अनदर बट विदाउट ओवरलैपिंग, तो ये फॉल्स है बेसिकली। दिस डिस्क्राइब दैट द वॉल्स एस्टिवेशन जो होता है ना, ये यूनिवर्सल, इट्स द यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ पोएसी, जिसमें पेरियंथ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हाईली मॉडिफाइड होता है, राइट? तो ये भी तो नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया आपको, ये दोनों तो है ही नहीं। स्टेमिन आर फाउंड अटैच टू द सेपल्स ऑफ द फ्लावर, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज स्टेमिन जो है ना यूजुअली फ्री रहते हैं पोएसी में, और ये जो किससे अटैच होते हैं, ये पेरियन से अटैच होते हैं, सेपल से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है? तो ये भी फॉल्स आ गया आपका। नाउ the fourth one is कि gynoecium is a bicapillary and placenta is swollen with many ovules, ये भी false है, क्योंकि gynoecium basically monocapillary होता है, जिसमें वन कार्पेल होता है पोएसी में। तो ओनली ओव्यूल पर ओवरी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड फिफ्थ वन इज कि सीड्स आर मेनली नॉन स्पर्मेशियस, ये भी बेसिकली फॉल्स ही है, क्योंकि जैसे कि सीरियल्स आ जाते हैं ना ग्रेन में, लाइक पोएसी फैमिली में, यहाँ पे आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द एंडोस्पर्मस, that is the albuminous seed, right? Example rice or wheat. Okay, so this is not the answer, it's also a false. Now, fifth one is ovules. So, if we're talking about ovules, ovules develop on the central axis and septa are absent. So, this statement is false because this describe that the free central placentation. Example, अगर हम बात करें ओके, हम ये बेसल प्लासेंटेशन सिंगल ओव्यूल अटैच होता है ना, राइट? तो ओव्यूल्स ये एब्सेंट रहता है, ऐसा तो नहीं है, ये भी फॉल्स आ गया आपका। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे देखो क्लियरली दिख रहा है, इसमें सही में कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 6 तो होना चाहिए, बट यहाँ पे 5 है, और मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या करूँ, और मैंने करके क्या आया है वो मुझे नहीं पता था। सो नन ऑफ दिस आर द आंसर्स। सो अब तो ये आंसर की आने से ही पता चलेगा। ओके, सो बेसिकली हमको अब आगे बढ़ना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन है लिली डिफर्स, ये लिली वाला क्वेश्चन है। तो लिली डिफर्स, लिली फ्लावर डिफर्स फ्रॉम द बीन ऑफ फ्लावर एज इन द अनदर फॉर्मर। तो लिली लिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एक मोनोकॉट है, राइट? तो इसमें दिया गया कि पेरियंथ इज एब्सेंट। तो पेरियंथ लिली में होता है, ऑब्वियस सी बात है, लिली में होते हैं कि पेरियंथ होते हैं लिली में, ठीक है? एंड ऑल 4 फ्लोरल होल्स आर फाउंड, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लिली जो है ना टिपिकली सेपरेट होता है, कैलिस और कोरोला सेपरेट होते हैं, उसमें पेरियंथ भी होता है। मतलब इसका मतलब B6 का मतलब ये है कि क्लियर है कि जो 4 होल्स है, कंप्लीट फ्लावर इज लाइक अ, सो द थर्ड वन इज सेपल्स आर एब्सेंट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है गाइस, सेपल्स आर एब्सेंट, सेपल्स नहीं होते, ठीक है ना? क्योंकि लिली फ्लावर में ना कैलेक्स यानी कि सेपल्स का जो पूरा ग्रुप है, दैट इज नोन एज कैलेक्स, राइट? एंड क्रोला पेटल्स आर टिपिकली ना इनडिस्टिंग्विश होता है, ठीक है? एंड आर कलेक्टिवली, ये जो है इनको टेपल्स हम बोल देते हैं, ठीक है? तो ये एब्सेंट रहता है। अनदर फोर्थ वन इज एंथर, एंथर एब्सेंट रहता है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यार लिली में एंथर ही नहीं है तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बोथ लेते हैं ना, फ्लावर्स में ऑब्वियसली रहता है ना कि एंथर इज अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, सो आर प्रेजेंट इन बोथ लिली एंड बीन। ओके, सो या दैट्स ऑल। एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली बॉटनी का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ लास्ट वन में ये दिया गया है कि हमको करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट वन को, हाँ करेक्ट वन को चूज करना है। तो ए मैचेस विथ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे पेट्योल जो है ना, पेट्योल, पेट्योल जो होगा ना, ये बेसिकली हम बात देखें ना, तो मुझे लग रहा है कि इसका ऑप्शन 3
सही होगा। लाइक यहाँ पे देखते हैं लीव बेसिस का। ये वाला थोड़ा सा मेरे को ये लगा था, डाउट लगा था, बट हम देख लेंगे इसको बाद में, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज ये वाला क्वेश्चन। ओके,